यार तो अपना लेबर के पीछे लगे हो ते जीएमओ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਲੋਡ वो कह रहा है कि लोड होएगी इंशाल्लाह। सिंधु साहब आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। Assalamu alaikum, dear members, students. My name is Ayaz Mustafa. I will moderate today's session on interview skills. इस इवेंट को फॉर्मली स्टार्ट करने के लिए मैं आईटी से रिक्वेस्ट करूंगा रेसिटेशन ऑफ होली कुरान के लिए, और इस तलावत कलाम पाक के बाद मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि हम आज के सेशन को किस तरीके से लेके चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। जी ऑडियंस, आज का जो हमारा ये वेबिनार है ये बेसिकली इंटरव्यू स्किल्स पे रखा गया है। इस सिलसिले में मैं थैंकफुल हूँ सीपीडी कमेटी का, फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल और रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी का, कि जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में कि आजकल कोविड की वजह से अक्सर इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि आज के इस सेशन को प्रोडक्टिव बनाया जाए। आज के सेशन का थीम ये है कि मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 पीएचडी डॉक्टर हैं। मैडम अर्शिया हाशमी, शी इज़ पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेज, and Dr. Umar Iqbal, PhD in Accounting and Finance, and one of the most experienced HR specialist, इरशाद अली सिंधु साहब। हमने कोशिश की है कि इस सेशन में सबसे पहले आपको बताया जाए कि एक कॉमन मिस्टेक्स और स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को इंटरव्यू में जाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और उसके बाद हमने इस सेशन में डमी इंटरव्यूज भी अरेंज किए हैं, तो हम इस सेशन में आखिर पे इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे और फिर हम उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस इवेंट को फॉर्मली स्टार्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर तनवीर साजिद FCMA से, वो चेयरमैन है रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी ऑफ फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल, फॉर ओपनिंग रिमार्क्स। प्लीज वेलकम तनवीर साहब। Thank you, Yasser. Assalamu alaikum. Good evening and very warm welcome to this webinar. I am Tanveer Said Bajwa, Chairman, Research and Publication Committee, Faisalabad, and also member of Faisalabad Branch Council. On behalf of Faisalabad Branch Council, I would like to thank all the panelists, especially Dr. Arshia Hashmi Sahiba, Dr. Umar Iqbal Sahib, and Irshad Ali Sindhu Sahib, and member of Faisalabad Branch Council, teachers, students, and guests present here to give this event honor. I would like to say something about ICMAP Pakistan. The Institute of Caste and Management Accountant of Pakistan, ICMAP Pakistan, was established in 1951 with the objective to regulate and promote the promotion to profession of management accounting in Pakistan. ICMAP Pakistan is a professional body with have responsibility to provide quality education to our members and students. Presently, the Institute has around 7,000 members and around 17,000 students. These members are serving on senior positions such as CEO, CFO, CEO, CIA, company secretary, financial analyst, management consultant, hence making significant contribution towards business growth and economic development. In addition to this institute is also actively involved in providing technical support to Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Planning Commission,
Security and Exchange Commission of Pakistan, SECP, State Bank of Pakistan, Federal Board of Revenue, FBR, Accountant General of Pakistan Revenue, Auditor General of Pakistan, Competition Commission of Pakistan, other ministries, and also policy-making organizations. ICME Pakistan is continuously arranging seminars and webinars on different current issues and problems taken by our members and students. CPD Committee of Faisalabad Branch Council is also arranging seminars and webinars to address the problems to our members and students in local levels. To address the problem and issues faced by members, students, and other persons during their interviews, we jointly National CPD Committee Faisalabad, and Research and Publications Committee Faisalabad, under the umbrella of Faisalabad Branch Council, arrange a webinar to discuss it in detail, our techniques and tips to self-present in an interview and to sidestep common mistakes. I once again want to thank Dr. Arshia Hashmi Sahiba, Dr. Umar Iqbal Sahib, Ishad Ali Sindhu Sahib, Shahid Shah Sahib, and Chairman Faisalabad Branch Council Abdul Shakur Sahib, and all other valuable guests for giving their precious time to ICME Pakistan platform. I once again thank you, everyone. Yes, please, yes, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Arshia Hashmi for her feedback and input on this webinar. She is PhD in management and she is currently working as HOD Management Sciences in the University of Faisalabad. Please welcome Madam Arshia Hashmi. मैडम आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसा अभी उनका मैसेज भी आया था कि उनको वॉइस ऑडिबल नहीं है, उसको देखिएगा जरा काइंडली। Can we proceed the event with Dr. Umar Iqbal Sahab right now? Then meanwhile we make it able to connect Dr. Arshia. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए और एकेडमिशियंस का जो है वो कंसर्न लेने के लिए, क्योंकि वी आर डीपली इन्वॉल्व इन दी स्टूडेंट प्रिपरेशन, क्योंकि उन्होंने जो है वो मार्केट में निकल के एक ट्रेडिशनल एकेडमिक प्रोसेस से निकल के उन्होंने मार्केट में एंटर होना होता है और फिर उन्हें देखना होता है कि दुनिया के जो बेंचमार्क्स हैं वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, फिर वो अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड करते हैं। एज पर माई एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज, क्योंकि मैं 4-5 साल न्यूजीलैंड में भी रहा हूँ, यूके में भी कुछ अर्सा गुजारा है, फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने अटेंड किए हैं जिनमें चाइना भी शामिल है। इस तरह मैंने दुबई भी विज़िट किया है, वहाँ की मार्केट को भी स्टडी किया है, और इससे पहले फिर पाकिस्तान आने से पहले मैं फास्ट में सर्व कर रहा था फॉर 3.5 ईयर। तो उसमें भी सिलेक्शन पैनल के अंदर मुझे बैठने का मौका मिलता रहा है, सिलेक्शन बॉडीज़ के अंदर, जिसमें हम न्यू कैंडिडेट्स को हायर करते थे फॉर द पोस्ट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड अदर डिसिप्लिन्स। तो मैं बात को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं इंटरव्यू के एक बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगा, फिर अपनी डिस्कशन को मैं कंटिन्यू करते हुए उस पॉइंट पे लेके आऊँगा, फिर मैं आगे कुछ स्किल्स को डिस्कस करूँगा जो कि इंटरनेशनली देखी जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इवन जो किसी ने क्या सिखाना, जो एक कैंडिडेट इटसेल्फ जो कि अपीयर होने जा रहा होता है इंटरव्यू के अंदर, वो भी जो है वो इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो इसका पर्पस क्या है बेसिकली। देखिए, सबसे पहला जो पर्पस है इंटरव्यू देने का या किसी जॉब को ज्वाइन करने का, वो होता है आपका अर्निंग, कि आप एक अर्निंग पर्पस से एक माइंडसेट को लेके आप एक इंटरव्यू के सामने आप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उस टेबल तक पहुंचने के लिए, इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचने के लिए अब आपने किया क्या कुछ होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ इसको। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक स्पेसिफिक स्किल, जो कि आपकी जो कि फैमिली जो सेट करती है, जो आप अपने माइंडसेट के थ्रू आप एक ऑप्शन को आप ऑप्ट करते हैं, एक स्किल सेट को, कि आपने ये स्किल सेट चूज करना है, इतना अर्सा आप इसमें काम करेंगे, उसके बाद आप इसके थ्रू आप अपना रोजगार अर्न करेंगे आप।
अच्छा, उस स्किल सेट के लिए आप क्या करते हैं? आप एक रास्ता चूज करते हैं। जी जी। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? No sir, right now I'm unable to activate the camera, Okay. unfortunately. Okay, no issue, continue please. ओके, तो उस स्किल के लिए नॉर्मल जो वर्ल्ड प्रोसीडिंग है वो ये है कि हम एजुकेशन का रास्ता हम अख्तियार करते हैं, कि एजुकेशन हम हासिल करते हैं, उस एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू हम कोई स्किल सेट हम ऑप्ट करते हैं और फिर हम मार्केट में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, उस अर्निंग के पर्पस के लिए जो कि हमने आज से 10 साल बाद अपना कोई गोल सेट किया हुआ है, हमने एक स्किल सेट ऑप्ट किया, फिर हमने उसकी एक रेलिवेंट एजुकेशन हमने हासिल की। उस रेलिवेंट एजुकेशन को हासिल करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें एक डिग्री मिल जाती है और उस डिग्री को लेके हम समझते हैं कि नाउ वी आर कैपेबल टू अर्न सम मनी और टू सर्व योर पेरेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब बदकिस्मती मुलाहजा की इस चीज़ की कि बहुत से लोग जो डिग्री होल्डर होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पोजीशन होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट मार्केट में एंटर होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि जो मैं डिग्री लेके जा रहा हूँ मार्केट में, क्या उससे रेलेवेंट नॉलेज भी मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, डिग्री तो आपको मिल जाती है, लेकिन मार्केट में जो कंडीशंस चल रही होती है, मार्केट के जो बेंचमार्क सेट हो चुके होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका कंटेंट होता है 20-25 साल पुराना जो आप स्टडी करके आ रहे हैं। ठीक है, और जब आप मार्केट में एंटर होते हैं तो मार्केट के डायनामिक्स जो है वो इंटायरली चेंज हो चुके होते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो एक सेपरेट डिस्कशन बनेगी, अभी इसको मैं इस चीज में नहीं लेके आता। तो द रियलिटी इज कि जब आप मार्केट में एंटर होते हैं देन यू कैन गेट रियलाइज कि आपके साथ हुआ क्या है। तब आपको पता लगता है कि आपके पास इस किन किन चीज़ों की कमी है और कहाँ कहाँ पे आपकी शॉर्टकमिंग्स आपकी फॉल कर रही हैं। अच्छा, जब आप नॉलेज की तरफ चले, हम फिर अब हम उनकी तरफ आते हैं कि जिन्होंने नॉलेज अपना ले लिया, मतलब जिनको हम कहते हैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जिन्होंने कुछ सीख लिया, जिनके जो मार्क्स हैं वो 70-80% हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो उनके पास नॉलेज है रेलिवेंट। अच्छा, फिर जब वो लोग इंटरव्यू के टेबल पे जाते हैं तो वहां पे दो चीजें फिर काउंट होती हैं। एक चीज काउंट होती है आपका नॉलेज, कि आप टेक्निकली आप कितने स्ट्रांग हैं। सेकंड चीज जिसका मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा, वो होती है आपकी ग्रूमिंग। अब हमारे पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बेसिक जो शॉर्ट कमिंग है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपको डिग्री तो मिल जाती है, आप नॉलेज भी किसी हद तक आप नॉलेज का लेवल आप अचीव कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रूमिंग की बात आती है ना, तो ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जाता। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, आपकी ग्रूमिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। एक स्टूडेंट वो है जिसने एमबीए किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ वेरी बिग नेम, उसका मेरिट ही बहुत हाई है। और एक स्टूडेंट है जिसने एमबीए किया है लम से। अब दोनों की 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी वाले का जो स्किल सेट है वो लम्स वाले से ज्यादा अच्छा हो, लेकिन लम्स का जो ग्रेजुएट है उसको जॉब जल्दी क्यों मिलेगी? बिकॉज ऑफ ग्रूमिंग। अच्छा, अब यहां से अब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जब एक पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट इंटरव्यू टेबल पे जाएगा तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा, और जो लम्स का ग्रेजुएट जब एक इंटरव्यू के टेबल पे पहुंचेगा वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगा। और उन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका गैप है, वही आपकी ग्रूमिंग है, जिसकी शॉर्ट कमिंग है हम सब कैंडिडेट्स के अंदर, जो कि मार्केट में नॉर्मली में देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं एक और तरह से देता हूँ यहाँ पे, कि एक कैंडिडेट ऐसा है जो कि बीकन हाउस में जॉब लेने के लिए गया है और वैकेंसी है आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश लेक्चरर की, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है बीएस, या आप कह लें कि एम इंग्लिश उनकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। अब वहाँ पे एक कैंडिडेट जाता है जो कि एम इंग्लिश है पंजाब यूनिवर्सिटी से या जीसी फैसलाबाद से या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एक कैंडिडेट वहाँ पे वो गया है या फीमेल वहाँ पे वो गई है जिसने सिंपल ए लेवल्स किया हुआ है। आप बिलीव करें, मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिन्होंने सिंपल ए लेवल किया है और इंग्लिश टीचिंग में वो एमए इंग्लिश वालों को वो हिलने नहीं देते वो। हालांकि ए लेवल्स जो है आपकी सिंपल एक इंटर लेवल की डिग्री है, एक इंटर लेवल का सर्टिफिकेट है, और एमए आप सबको पता है कि एक मास्टर लेवल की एक डिग्री है जो कि आपको 4 इयर्स के बाद आप अर्न करते हैं आप। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्किल सेट ऑल दो के एम इंग्लिश वाले का ही ज्यादा होगा, लेकिन जहां पे आप ग्रूमिंग की बात करेंगे, ठीक है, वहां पे ऑफ कोर्स जो जिसने ए लेवल किया है वो उस जॉब को ज्यादा जल्दी ऑक्यूपाई कर लेगा। उसकी वजह क्या है? वो आपकी ग्रूमिंग है, वो आपका स्किल सेट है ग्रूमिंग का जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है विद इंस्टीट्यूशन, या आजकल के दौर में तो इंटरनेट इज वेरी कॉमन। हाँ, आज से 10 साल पहले अगर ये लेम एक्सक्यूज लिया जाता कि हम कैसे ग्रूम हो, हमें बताने वाला कोई नहीं, तो ये बात मानने में आती थी, लेकिन आज इंटरनेट पे आपको हर चीज अवेलेबल है कि आपने अपने आप को ग्रूम कैसे करना है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो सिर्फ 15% रह जाता है, और आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल सेट है और आपके जो अदर फैक्टर्स हैं वो 85% तक काउंट करते हैं किसी भी जॉब को ऑक्यूपाई करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस,
अब ये तो आ गई आपकी पर्सनल कैपेसिटी कि आप अपने आप को किस तरह से आप ग्रूम कर सकते हैं और आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं आपकी कम्युनिकेशन के कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं, ठीक है? इसमें आगे फिर कुछ ड्रेसिंग के फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है? और वहीं से मतलब जब इतना एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भी होगा, मेरा भी हो चुका है कि जब एप्लीकेंट या कैंडिडेट आप डोर से चेयर्स तक चल के आता है, तो हमें वहीं पे पता लग जाता है कि इसका स्किल सेट क्या है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नहीं है, ठीक है? या ये कितना ग्रूम्ड है ये। मैंने अपने बहुत सारे हलकों में जाने वालों में, बहुत मेरे करीबी, मेरे रिलेटिव्स में भी हैं कि जिनके बच्चे जो हैं वो थ्रू आउट उनकी फर्स्ट पोजीशन है बोर्ड के अंदर, मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर। अगर वो ग्रेजुएशन में गए हैं तो उन्होंने बीकॉम में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, पोजीशन ली, या अगर कोई मास्टर्स किया तो बहुत अच्छी पोजीशन ली। लेकिन जब वो जॉब लेने गए थे तो मैंने उनमें ये ड्रॉबैक देखा कि उनकी जो ग्रूमिंग थी वो जीरो थी। डिग्री तो थी उनके पास लेकिन वो ग्रूमिंग नहीं थी। वो बैठ के कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। और एक इंटरव्यूअर को स्किल सेट तो उसको मिल ही जाता है, लेकिन जो चीज उसको चाहिए होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फर्दर में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। वो ये कि आपका जो रेफरेंस होता है, ठीक है, मैंने जो चीज अपने पूरे ग्लोबल एक्सपीरियंस में सीखी है वो ये कि आपका रेफरेंस जो है ना वो सिक्योर होना चाहिए जो आपने प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम सिर्फ रेफरेंस को एक कंपोनेंट के तौर पे लेके चलते हैं कि एंड पे जाके रेफरेंस टू बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट के नाम से, लेकिन उसको ना तो कोई एवेल्युएट करता है और ना कैंडिडेट उसको खातिर खा वैल्यू देता है। मैंने न्यूजीलैंड में तकरीबन 3 कॉलेजेस में मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। अकाउंटिंग और फाइनेंस के कोर्सेज मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं। और जब भी मैंने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में मैंने स्विच किया है तो मुझे लाजमी पता लगा है कि एक कॉलेज के एचआर ने दूसरे कॉलेज के एचआर को, जिसको मैं लीव कर रहा हूँ, वहाँ उनको कॉल करके मेरी रेपुटेशन को उन बाकायदा वेरीफाई किया है और उसके बाद मुझे ऑफर लेटर उन्होंने जनरेट करके दिया है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ शायद इस प्रैक्टिस को ज्यादा इवेल्युएट नहीं किया जाता। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को इस चीज का नहीं पता था तो इस चीज को समझ लें कि रेफरेंस इज अ मेजर कंपोनेंट। रेफरेंस है तो आपको जॉब कहीं भी मिल सकती है अगर आपने अपना रेफरेंस अच्छे तरीके से और एक प्रोफेशनल वे से आपने सिक्योर किया है। अच्छा, अब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमें कॉल आ गई, हमने ग्रूमिंग भी अपनी कर ली और स्किल सेट भी हमारे पास आ गया, हमने डिग्री भी ले ली, नॉलेज भी है हमारे पास। तो ड्रेसिंग, ये पॉइंट मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ कि आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो अप टू मार्क होनी चाहिए न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? चाहे आप किसी से मांग के पहन के चले जाएं, लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग है वो अप टू मार्क होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो चीज़ जो मैंने नोट की है, जो कैंडिडेट के अंदर एक शॉर्ट कमिंग होती है, ठीक है, वो ये आपका जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड, ठीक है? कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड को स्टडी ही नहीं करते। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको करना क्या है कि आपको थ्रू आउट उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके बोर्ड मेंबर्स कौन है, उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कौन देख रहा है, आपका बॉस कौन होगा वहाँ पे, आपके सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे वहाँ पे, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनके फाइनेंसिंग कैसे चल रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, उनके गवर्नमेंट के साथ मामला कैसे चल रहे हैं, ठीक है? आपको पूरी की पूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने स्टडी करना है। ऑल्दो कि ये आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज आपको इंटरव्यू में हेल्प आउट करेगी। आप पहले से फीमेल होंगे कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा होगा और किस पर्सपेक्टिव से आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्टडी करना है। अच्छा, मैं प्रैक्टिस क्या करता था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड को भी स्टडी करता था। मैं अगली चीज जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ तक कंफर्म करता था कि मेरे इंटरव्यू में कौन कौन बैठा होगा और उस इंटरव्यूअर का बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी स्पेशलिटी किस चीज में है, ठीक है, उसकी हॉबीज क्या क्या है, उसका लाइफ ट्रेंड उसके क्या क्या है, ठीक है? तो जो, क्योंकि हर इंसान की एक साइको होती है, एक माइंडसेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है? तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें, फिर आप जो है आप जो इंटरव्यू, जो पोटेंशियल इंटरव्यूअर कोई भी हो सकता है, तो जो भी आपको लगता है कि आपके इंटरव्यू में प्रेजेंट हो सकते हैं, आप उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखें, आप उनके स्किल सेट को देखें। वहां से आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि जो अगला बंदा इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है उसका खुद का आईक्यू लेवल कितना है, उसका खुद का स्किल सेट कितना है, और आपसे वो किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है इस चीज को लेके। अच्छा, उसके बाद जो एक मेजर सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट डिग्री लेने के बाद, ठीक है, इंटरव्यू से पहले मैंने देखा है कि वो सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अल्लाह का नाम लेके पेरेंट्स की दुआएं लेते हैं और इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं।
लेकिन जो एक मेजर कंपोनेंट जिसको वो इग्नोर कर देते हैं वो होती है आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन। मैं आज तक जितने भी इंटरव्यूज में प्रेजेंट हूँ, इवन के आल्दो के पीएचडी के बाद भी अगर मुझे कहीं से इंटरव्यू की कॉल आती है तो मैं पहले 2 दिन जो है बैठ के अपने पूरे पीएचडी थीसिस को स्टडी करता हूँ। अपनी सारी अकाउंटिंग की जो पुरानी बुक्स हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ फाइनेंस की, उनको मैं निकालता हूँ खुद से, एक एक चैप्टर को, एक चीज को मैं गो थ्रू करता हूँ, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, उनको मैं गो थ्रू करता हूँ, फिर मैं इंटरव्यू में जाके प्रेजेंट होता हूँ ताकि मेरे पास एक सफिशिएंट अपना टेक्निकल नॉलेज भी हो, मैं ग्रूम्ड भी हूँ, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड का भी पता हो कि उसमें क्या चल रहा है, और जो इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा है मुझे उसका भी पता हो कि इसका आईक्यू लेवल कितना है, ये मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चंद सजेशंस थी एज पर माय एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जी आशा। थैंक यू उमर साहब, आपकी वैल्यूएबल सजेशन। मैंने भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें नोट की हैं कि बच्चा जो है वो टेक्निकल चीज़ों को इग्नोर किए रखता है। एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड कि बहुत सारे लोग ये मिथ क्रिएट कर लेते हैं कि इंग्लिश जिसको अच्छी आती है तो उसकी क्या बाकी स्किल्स का कोई काउंट होता है कि नहीं। वैसे तो ये सवाल पूछा गया था आपकी इंग्लिश वाली बात से, लेकिन आपने खुद ही उसको कवर कर दिया है कि टेक्निकल स्किल जो है वो भी देखी जाती हैं। इंग्लिश तो एक एलिमेंट है जो आपकी कम्युनिकेशन के लिए है। सर अगर आप इसमें कुछ फर्दर ऐड करना चाहें इस मिथ के अंदर तो ये प्लीज। सर देखिए, बेसिक जो एम्प्लॉयर को एक चीज चाहिए होती है, एक टेक्निकल स्किल सेट तो उसको रिक्वायर होता ही है, लेकिन आप ये देखें कि एक इंसान कभी भी आइसोलेशन में रह के काम नहीं करता। अगर आप एक टीम में रह के काम कर रहे हैं, या अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, या अगर आप मार्केटिंग में चले गए हैं, या अगर आप एचआर में हैं, या आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हैं, तो इट डज नॉट मीन कि आप जो है वो आइसोलेशन में रह के काम करेंगे, आपने किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आया आपने उसको प्रोसीड किया और अपना काम करके डॉक्यूमेंट आपने वापस भेज दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसके अगर मैं अदर एस्पेक्ट की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो टीम मेंबर्स हैं आपने उनसे भी कोऑर्डिनेट करना है, आपके जो सीनियर्स हैं आपने उनसे भी कोऑर्डिनेट करना है, आपकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपकी टीम एक बनी हुई है, आपने उनसे काम निकलवाना है, ठीक है। इसका मतलब ये कि टेक्निकल स्किल के साथ साथ जो है आपकी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो भी रिक्वायर्ड है। तो ये बात मैंने पहले की थी आपको कि जो आपका जब आप इंटरव्यू के टेबल के लिए जाते हैं तो स्किल सेट तो आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। मैं आप लोगों की मिसाल लेता हूँ, आप सब माशाल्लाह आप एसीएम में क्वालिफाइड हैं, आप लोग फेलो मेंबर्स भी हैं, एफसीएमएस भी हैं। अगर कहीं पे एक फाइनेंशियल कंट्रोलर की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे अगर 10 एफसीएमए आते हैं विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप खुद सोचिए कि जब आपका एक्सपीरियंस भी सेम है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी सेम है और एक्सपीरियंस भी सेम है, तो फिर एम्प्लॉयर 10 को 10 को तो हायर नहीं करेगा, वैकेंसी तो वहाँ पे एक है। तो वहाँ पे जाके जो चीज़ आपकी काउंट होती है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, कि आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आप ग्रूम्ड कितने हैं। और फिर ऑफ कोर्स इंग्लिश को हम फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम इग्नोर पाकिस्तानी माशरे में नहीं कर सकते। ये हमारा कह लें कि ऑल्दो इट्स जस्ट एन लैंग्वेज नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन ये चीज हमारे जीन्स में आ चुकी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यस, इट डज इंक्लूड इन द इंटरव्यू कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अर्शिया हाशमी टू शेयर हर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, प्लीज मैम। मैडम आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, sir. Definitely, Sir Umar has given. Can you hear me? Yes, I am hearing you. Can you? Am I audible to you? यस मैम, यस। Sir, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी Okay. बिल्कुल। Thank you, sir. First of all, I would like to thank all of you for giving me this opportunity to be the part of such a valuable discussion. And there are so many things that Dr. Umar has already mentioned, and I would surely agree with him. And we are talking about interview skills, we are talking about grooming, we are talking about such sort of things. Because I also, let me introduce myself. I have served for 10 years. I have experience in serving different universities as head of department, and I have currently I'm serving as head of department at the University of Faisalabad in the Department of Management Studies. मैम And I आपकी have आवाज seen थोड़ी कम हो one गई है। thing, it can be the dilemma of academia, it
can be the dilemma of our, you can say, practices, that we are generating graduates nowadays. Uh, but can you hear me, Mr. थोड़ी आवाज Yas? कम Can you hear me? जी अब ठीक है, पहले थोड़ी आवाज कम Hello? हो गई थी। Hello? जी मैडम अब ठीक है। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी, okay. So, जी, okay, surely. So nowadays, if I talk about as an academician, and because I remained a part of different, you can say, the selection boards, and I have seen that we are generating graduates, but we are not grooming them, as Dr. Umar has mentioned earlier. We are not equipping them with the skills that are necessary for them to be an employee, to be a better person. And first of all, if I talk about, I have chosen a topic as well for this, and it is very, you can say, the beginning of your appearance, because I have seen both genders at the time of interviews, and usually I have seen so many things that are, you can say, the part of our interviews, and I feel I would must mention the side of females that I have seen during interviews, that how they feel themselves at the time of interview and how the boys react. And usually, I have seen much confusion from the female side, and perhaps it is a dilemma of our society, or our, you can say, the part I would openly say that we are not giving the confidence to our daughter to that much extent that is needed nowadays, and we are not bringing them at the pace of word. And when I talk about appearance and the way in which we appear in the interviews, I have also, you can say, developed a presentation as well to mention some points, so you can have a better, you can say, the communication with me when I will show some points with you. So let me share the screen as well. Uh, So there are some tips of success. I will start from, as Dr. Umar has give a generalized view, and I will be a bit specific about discussing the interview and tips of success. First of all, the first thing, that is your appearance, that is your way of entry, that is your way of communication. So first of all, you will have to focus upon it, and then the rest of the things come. And then whenever you will come in the interview, I have seen so many people who come and they are so much confused, they are so much shaky at the time of interview, and it is really seen when I have seen. And they, first of all, there are so many people I have seen, they even don't talk anything, and they are that much confused that we will have to say them that please take a sigh of relief and be seated. We are just having a conversation with you. There is nothing else. So this is the extreme of anxiety that I have seen in many of the, you can say, the interviews. And basically, we get afraid. It is our social, you can say, stigma that we get anxious very earlier. As I compared in my foreign experience, I have seen that the there are so many, you can say, the nations in which I have seen so much cool atmosphere for the people, but usually we people don't feel comfortable. Then we get panic a lot, and when we appear in the interview, the same thing is seen. And I would suggest that whenever you come in the interview, you should have a smile on your face. One pleasant smile would be enough for you to make your panelist a part of your, you can say, the view. They will have a positive gesture about it. And for that purpose, you can use some, you can say, the sentence like that. I'm very much pleased to have this opportunity, and I'm very much thankful for scheduling this interview. So such kind of, we can say, the one pleasant sentence should must be delivered by the person who is appearing in the interview. Secondly, the gate does matter a lot. Mostly, I have seen there are so many people who enter in the room of interview, and they are so much panic, and they are so we just feel like that they will run away from here. So this kind of situation is also seen, and there is another situation when someone
shows very much casual attitude in which they come just like that they have come for some recreation purpose. So these both attitudes are wrong. You will have to show yourself calm and active as well. You will have to show yourself active, like I have written with at least 10% more faster than usual people. But it should not be 100% more faster because it would be overactivity. I was a part of an interview panel. I experienced that. There was a person, he was a PhD person, he had earned a PhD, a foreign PhD, and he was so much, you can say, the active, and everything was okay about him. He entered in the interview room, and I remember that time. He came. We did not say him that you should present or you should give the demonstration, but he said, "I will give the demonstration. I will definitely give the demonstration." We allowed him to that. You should must give the demonstration if you are you are willing to do this. He gave the demonstration, and he was that much overconfident that we felt that this is not a suitable product for us. And when he left the room, all the panel members were not willing to keep him in our, you can say, the organization. The reason was that he shown the confidence, but he shown the overconfidence. So you should be calm, you should be relaxed at the time of interview whenever you are appearing. And when we talk about dress Excuse me, does ma'am. matter a lot. uh, because it is both, it is a thing which is, yes, स्लाइड्स yes, थोड़ी yes, स्लाइड मोड में शो करवा दें, पार्टिसिपेंट्स yes. कह रहे हैं कि उनसे पढ़ी नहीं जा रही, तो स्लाइड्स को अगर प्रोजेक्टर मोड पे, स्लाइड मोड पे चला दें। जी Okay, जी let, yes, sure. जी So second thing, that is the dress. I think so. You would have got the point. So second thing that I like to mention is your dress. Dressing is a thing I will say that it is a thing that is learned over the passage of time, and it is not a thing that would be happen overnight that we will learn how to wear. But still, it is our institution that tells us, and these are the such sort of sessions that can tell you that how what kind of dressing you should have. Because whatsoever you wear, it is the first impression that the others get. So your dress, your hair, your collar, your tie, and your, you can say, scarf, these are the things that are your first reflectors. And when I would specify the men and women, then I would first of all discuss the attire of men. Men usually, I would suggest them to put on, if they are in suit, they should prefer the navy blue and gray, that they should always prefer the conservative colors. It is better for them to appear with these colors. If suit is a better option for you if you are going to appear in the interview, and it should be navy blue, or you can say gray. It is a better option for you. And if you talk about your shirt, in the summer mostly the people opt for shirts and tie and such sort of attire. So in this, you should must, you can say, ensure that it should be long sleeves, and the lighter colors should be preferred, and monochromes. I will suggest the people, the checks, the linings. I would not suggest you to put on that, although it will work, but it's better to put on the monochromes. I will go in detail these details because these are very necessary. And white color is the best option, I would suggest. And if you don't have white color, I think every man has the white color shirt. Everyone sitting has this. But if you don't have, then light blue would be an option. And the cotton 100% cotton shirt is a better option rather than a silk stuff and such kind of things. And one thing that is very much important is the ironing of your dress. It should be professionally ironed. This will give your you can your image that whether you are how much organized you are. If your dress would not be ironed, usually people do. You can opt a dress, or you can casual dress if you are going for recreation. But if you are appearing in the interview, you should look professional, and your attire should be like, you can say, the guys say that pura babu bante aana hai. So just like that, you will have to show yourself like that. So if we talk about further the dressing, the belts, the black and burgundy would be the better option for you for a एक्सक्यूज मी belt. मैम, Uh, and
Yes. माइक करीब रखें तो आवाज सही है, माइक दूर होता है तो फिर वो आवाज लो हो जाती है। Okay, let me keep it nearer to now. Is it okay? यस, ओके। Yes, sir. Okay. And when I talk about the belts, I've gone much deep in dressing because it is very much important thing, and each and everything is noticed a lot when you are appearing in the interview. And when how to put on the tie is also a question. And most of the times they even use very bigger patterns of tie. This is not the option for interview. When you are showing your span, you will have to show smaller patterns in your tie, and red and yellow can be the better option. And when we see the length of tie, it should be top of your belt buckle. It should come up till that. So it would be a better suiting for you when you are preparing in the interview. And the knot should also be smaller one. That knot of tie does matter. So in every way you will have to show yourself sophisticated one. This would be the better, you can say, the look, and you would look nice in that. And I would now suggest about the females. It is a very bigger thing that I have noticed, and mostly when we talk about attire in interviews, we don't talk about females. We talk about male. But it is a very important thing that must be noticed by the females as well. I would also suggest the colors. There should be dark navy blue and such gray colors. These are better colors and monochromes. The very big floral designs are put on by the females during the interview, and I have seen this does not give you a formal attire. Whenever you see some formal women in the Western society, we see them in the pant coat, in skirts. It is a better option if you are in the part of because if any international audience is there, I would suggest them that if you are putting on this skirts, or you are putting on the pant coats, so it's better option to wear the long skirts. You should not give your image as a one who is very much, you can say, vulnerable to the shorter dressing. Whatsoever the society is, while the time of interview, you should show some conservative side as well. And when we talk about the Pakistan's perspective, then Pakistan's perspective, I have seen girls, they come in the interview, they have very long hair, and they don't even tie it up. Although it is not, you can say, and they have, you can say, dresses. These are all very bigger floral designs, and they show very shocking colors. So these shocking colors would not be the part of your dress when you are appearing in the interview. And I would also mention that there should not be very much high heels for the females. Females usually prefer very high heels and noisy heels. This not can be the option, and not open shoes or pumps that you can wear. And there should not be any noise of those shoes at the time of interview. You can use the court shoes is the best option, but that should have an appropriate size of heel. That should not be very much long heel that can create yourself so much, you can say, uh, or you can say the out of the sophistication standards. And the accessories when come, I have as shown you for males and females as well, that there should be some the shoes should be darker in color as compared to your dress, and your hosieries just like that, that should be on skin tone, and your other accessories should be like, and you should not put on so much makeup on your face. The females usually do this. And you should look normal person, and a normal, you are not going towards a party, and you are not going towards some, you can say, the festive event. You are going for the interview, and you should have a very lighter makeup, very lighter you can say the lipstick. And you should just keep yourself neat and clean, and your hair should not touch your face. I will suggest the female audience that when you will go in the interview, your hair should not touch your face. It would give the bad image regarding your, you can find formal looks. And there are other things. Few people, the females do this. They carry their handbag as well as their briefcase.
So you should have only one option. You should keep your handbag, otherwise you should keep your briefcase with you. Though the both things cannot be kept at a time with you. And even I will talk about body language. There will be a lot of things that I can describe, but perhaps it would be a long thing to be described at this time. But I can have a session on just the bad body language. That how will you sit, how will you speak, how will you do the things. But I'm just now focusing upon your attire, your looks in this session. But we can have discussion about that as well. That how will you sit, how will you do the things. And as we see, some people also do some mistakes, like we are very much, you can say, the sharp colognes and perfumes. This can be also a bad thing, that a bad image created by you in front of panelists. You can have very lighter, you can say, the perfume that you can wear at the time. And you can say you cannot use very shiny shoes, you cannot use your very, you can say, the shiny nail paints and such sort of stuff. So these are all the things that can show your image, just like you are not the serious one. You are not, you can say, the one who takes this things in a serious mode. So you should not give such kind of image at all to your interviewer. And body image, as I have told you, there would be the a good posture. Most of the times you can use a 90 angle. You should use this, like sit like this. It can be the better way of posture. And most of the time, I will like to mention, and it is a mistake even done by even our politicians and very bigger figures. I will not mention the names. We people sit cross-legged. This is not the formal way of sitting. I most of the times I tell my students that don't sit cross-legged. It is not the formal way of sitting. You should, whenever you are the part of any formal meeting, whenever you are the part of a interview, you should sit in a 90 angle and a straight way. You should not sit cross-legged. And you should have firm handshake. You should not show yourself as that I'm an inconfident person at all. And you can say that above, you can like that, you should sit like that. Your hands can be put on the desk. You can put the hands on your lap as well. But you should not keep yourself, you can say, lean towards something, and you can say the cross leg one. And you should must keep the eye contact with your interviewer. It is a very important thing. But there is a time for eye contact as well. I will tell you, there should be at least 15 minutes. That would be enough for an eye contact. But if you are seeing someone more than 15 seconds, then it would be staring, it would not be eye contact. So there is a very, you can say, the fine line behind these two things. You should must, you can say, understand this. And it is very much important when you are appearing in an interview and someone from the opposite gender is sitting in front of you. So you should keep your eye contact. You should not be reluctant to keep the eye contact, but there is a time for eye contact. You should keep it up till 15 seconds, and after that, it would be considered as staring. So you should maintain these things. And another thing that I want to mention is your voice image. Your voice, you should have a clear voice. It should not be shaky. What would happen whenever you appear in the interview? You should think about, I think at first you should think about your worst. That what would happen if I would not be passed in the interview? This would be the last option. So you keep in mind and you become confident, and then you appear in the interview. So your confidence will be, I think it will be raised. Whenever I do something, I first of all I do think about the worst. That what would happen if I will not achieve this. So in this way I achieve my confidence as well. So I would suggest you that whenever you appear in the interview, you think that what would be the utmost thing. I will not pass, so what would happen? Life will not end. So whenever you will appear in the interview, your voice should not show yourself that I am shaky, I'm not having confidence. And you should speak with your tone, with your confidence, and you should project your voice as a voice of a confident person. So I would suggest, because voice tells a lot of things. And
I will also tell that there is another thing. I would like to give you the tip. You should equip yourself when you are appearing in the interview. Like I have seen in my career, there are so many situations in which they tell you that write something about you can say like they will say that you develop a plan. We are giving you half an hour. You develop a plan for us. You develop a feasibility for us. So for that situation, you show yourself as as a composed one. So you keep yourself equipped with everything. Your briefcase should not just have your educational documents. You should have a you can say the writing pad. You should have a pencil. You should have extra resume of yourself. So whatsoever that you think that can be required by your interviewer, that should be kept by you. And you should not be, you can say, dependent at the time of interview. It will show your flag behavior that this person is not serious in the things. So you should yourself and project yourself that I am the best one for this interview and I am the best one for this job. And moreover, I will also suggest that you should must reach in the at the time of interview before 15 minutes. When you get late, sometimes you get the chance to be appeared, but this is the chance which is given to the person who is already late. I have seen my panelists by saying that whenever I have been the part of selection board, the ones the candidates who came late, they said that if this person cannot manage the time, how can he manage the affairs of our organization? Be a positive point for you at the time of interview. And it is the real thing that these are the real talks that I have listened from from different board members. And you should must have, as Dr. Umar has told you, that you should must know about the background of the organization, because they are seeing you with their eye. They are seeing you in a way that how this person suits our organization. So when you will dig out the history of that organization, you will come to understand that how my capabilities match with that organizational needs, and accordingly they will hire you, and you can present yourself as a better individual for them. And basically, as I have told you, all the questions are inclined towards your suitability, your credibility, your capability, your compatibility, and your affordability. They will see your capability, your technical knowledge, your capacity, that how this person suits their organization, and then they will see affordability as well. So keep your demand up till that limit that can be afforded by that organization. Keep your you can say yourself, if you are seeing that this is a bigger organization than they can afford, you can have a better option of bargain. But if you are seeing the financials of that organization and you are going to be the part of that organization, then you can have you can say, and you are seeing the market trends, so you can have your you can say the demands accordingly at some bit lower level. Mm, Most of the time you can say when they are judging you. Most of the time, yeah, they ask you from behavioral based questions. They will ask you, they will ask you about different situations. So in these situations, actually, they are judging your attitude. We are the researchers. We know that there are a lot of ways in which the attitudes and behaviors can be judged, and the person can be judged. There are so many tests that are conducted. So at the time of interview, again, the things are happening like this. And they will explore your behavioral side. That in which situation, in what kind of things you do. So in this situation, you would have to, you can say, if you are telling about some story, some experience, so you will have to show, always you will have to show some positive side. You should not go towards some negativity. You should not go towards some lame excuses from tragedies for towards tragedy. Tragedy is not their concern. Your personal life is not their concern. So you should be focused and you should be professional in your attitude, and you should always show yourself as an optimistic one in your behavior. If you will tell about any pessimistic thing, they will not feel you better. I will suggest you. And sometimes it is also situation, sometimes they test your patience and they ask you
about some very irrelevant questions which are not related to your technical knowledge, but usually they are again testing your attitude. For example, I have shown some question like who would you want with you if you were stand on a deserted island. This is a situation in which they are actually judging your attitude towards this situation, because it is an unusual situation. Someone is on some deserted island and he is asking for some help, and what can be the better option for him? So what can be the best answer for this kind of question? You will say that a boat builder, thus showing your resourcefulness. So you will say that I will at that moment I will choose a boat builder. It means you are a resourceful person, some short-term gain, or some you can say short-term triumph. So in this way, they will judge your attitude. I had been appeared in an interview in which he asked me, "You have been an administrative post, and you are there are universities, and universities there are so many university, there are so many shortcomings of us as well. So what will you do at the time as being head? What will you do? Would you be the part of us? Would you leave us? You would be the part of us, and what would we do? I said that I will not leave you people, and I will also not become the part of status quo, but I will remain the part of system, and I will try to change it. So this can be the better option that I felt at the time, that uh, in moments the systems are not changed, but we can try to change the system. So you can have such kind of answers at that time. And obviously, as I have mentioned, in a situation whenever such kind of questions are stated to you, you should must Yeah. see the So, situation. Yes. uh, Develop a task, action, and results. Your each question must have a result, must have an outcome that you are giving to them. And I think sometimes there is another thing I would like to mention is the negative questions. Sometimes some negative questions are asked from you, and some negative sides are explored from you. These are intentionally done by the interviewers. So at that time, you should not go towards stereotyping. You should not go towards negativity. Your answer should be like that, as I have mentioned my example, that you should answer in a way that if the things are negative, I will turn these things into positive. So again, in the negativity will also be turned into positivity in your answers. So you should must keep this kind of attitude at the time of interview. And mostly it is asked in the interview that what are your weaknesses. It is a very commonly asked question. So at the time of telling your weakness, it should be told in a way that it becomes the strength. Your weakness should be told in a way that it is your strength. If same is the case, some negativity is there told, so you will not you can say if your interviewer is telling something negative, it does not seems good that you will negate his talk. You will not never negate your interviewer, but you can have contradictory view with him in a very positive way. So in this way you can win that you can say that discussion. And sometimes some questions are generally asked, you can say intentionally asked from the interviews, that are about the illegal practices. It is usually done by the interviews, and it is actually again they are testing your brain. And so it is not the thing that you should be confused and you should not answer that question. It is also not the solution that you should become willing that I will do every illegal thing. So in this situation, you should be very much, you can say, wise, and you should say just like that. Is it relevant to my job, or how does it correspond to my job? So in this way, you can go out of this question, but you should not be confused at that time if your interviewer is asking such kind of things, because these are different kinds of question I will must mention here, that are usually asked by the interviewers, and you should be prepared for it. And you can say sometimes it is also a situation, uh, they they judge your skills,
and they tell you that now I am being interviewed and you kindly conduct my interview. So in this situation, you should must have a bank of questions with you. You should go at the time of interview with a bank of questions with you as well. So if the such situation occurs, and it is usually occurring, so in that situation you should become just like confident interviewer and you should ask the question. So I would suggest this thing as well to you people. So and at the end of the interview, I would also suggest that you should must thank your interviewers, because it is a very important thing. It's a very good gesture when you are giving at the end of interview. If you are just going away and doing some things in so much brisk way, it is not the way. There should be a proper beginning and there should be a proper end of your interview when you are appearing. I think I have highlighted and I have got bit more time, but there was the things I like to mention a lot, because these are very common things that happen in the interviews. So I hope you would have got some sort of, you can say, knowledge from this. And now I will turn my to Ayaz Mustafa for further proceedings. थैंक यू सो मच मैडम, आपने बड़े अच्छे तरीके से वो पॉइंट्स हाईलाइट किए जो मोस्टली लोग उन्हें फारगो कर रहे होते हैं, उनको कंसीडर नहीं कर रहे होते। लाइक ड्रेसिंग है तो बहुत सारे लोग इनफॉर्मल मोड में जाके इंटरव्यू में चले जाते हैं कि मेरा तो नॉलेज टेस्ट होगा, तो मुझे फॉर्मली किसने देखना है। तो ये बड़े अच्छे टिप्स थे आपके। फिर वो जो है आपकी एक टिप थी कि 10% मोर फास्टर आपने होना है एटलीस्ट, तो वो काफ़ी अच्छे एक हेल्पफुल है कि जो आप रूटीन में है उससे 10% एक्स्ट्रा बिहेव करें, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बिहेव नहीं करना चाहिए। सेशन को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे साथ एचआर एक्सपर्ट मौजूद हैं, इरशाद अली सिंधु साहब। ही इज सर्विंग एज जीएम एचआर इन सितारा पेरोक्साइड in Sitara Group of Industries. I welcome Sir Irshad Ali Sindhu Sahab for your remarks on this session. Thank you very much, Ayaz, for considering me to speak on this very, very important learning and sharing session. सर आपकी आवाज थोड़ी कम है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका अयाज कि आपने मुझे कंसीडर किया। थैंक यू वेरी मच। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली टॉपिक भी है और सेशन भी है। और जैसा कि मैं ये भी बहुत गौर से सुन रहा था, इवन दो कि मैं ऑन द वे हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन मैंने बड़े केयरफुली ये सारी बातें सुनी हैं। तो ये डॉक्टर उमर साहब और डॉक्टर अरीशा साहबा, तो बेसिकली दे हैव लेफ्ट नथिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड अपना बता दूं कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर वे बैक इन 99। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलें तो पार्टिसिपेंट्स को आवाज बहुत लो आ रही है। जी अयाज, मैं बेसिकली ना रोड पे हूँ, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ भी वीक है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुँच सके। जी आप ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत वैल्यू एडिशंस की हैं डॉक्टर उमर साहब ने और डॉक्टर अरीशा साहबा ने, और इनफैक्ट दे हैव लेफ्ट नथिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करता हूं कि कुछ मैं इसमें अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकूं। तो मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं नस से ग्रेजुएट हूँ वे बैक इन 99, और देन मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है, और मेजर मेरा जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेरा जो वो मेजर सब्जेक्ट था। तो मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर तीनों में मैं सर्व कर चुका हूँ, और मेरे जॉब का कुछ हिस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्री गुजरा है, और बाकी मेरी जो कोई 18 साल की सर्विस है वो पाकिस्तान में है। अभी प्रेजेंटली मैं जो सितारा ग्रुप के साथ अटैच हूँ एंड आई एम सर्विंग एज हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 16 ईयर्स। तो अभी जो सारी बातें मैंने सुनी है, तो उसमें मैं जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर उमर साहब की एक पॉइंट था कि पर्पस ऑफ इंटरव्यू जो उन्होंने बयान किया था,
उसमें उन्होंने बताया था कि पर्पस ऑफ इंटरव्यू जो है वो बेसिकली फॉर मनी मेकिंग या अर्निंग है। तो मैं इससे इससे बेसिकली स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ कि मेरे जाती हम्बल ओपिनियन में ये एक पर्पस तो है, लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली हम किसी क्लब की मेंबरशिप के लिए इंटरव्यूज देते हैं, और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा इंटरव्यू होता है, कैडेट कॉलेजेस में होते हैं। ये सारे डिफरेंट इनके मोड्स होते हैं, डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, डिफरेंट इनके बैकग्राउंड होते हैं और डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं। अच्छा, इसमें अब दूसरी बात यह है कि एक चीज जो कम्युनिकेशन को लेके जो मैंने सुनी, डिस्कस हुई थी, तो उसमें जो एम्फसाइज किया गया है कि 75% रोल कम्युनिकेशन का है। तो उसमें भी मेरी एक थोड़ी सी नाकिस राय है कि कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वाइटल रोल है किसी भी जॉब में, किसी भी आपके रोल में। लेकिन इट अगेन डिपेंड्स कि आपकी जॉब क्या है। अब देखिए, अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसने ओनली डाटा जो है ना वो पंच इन करना है, तो वहां पे 75% वेटेज नहीं दी जाएगी उसको, क्योंकि उसकी जॉब नेचर ऐसी है, उसने ना तो किसी के साथ अपनी कम्युनिकेशन करनी है, डाटा आना है, डाटा उसने पंच इन करना है। तो लिहाजा इसी तरह से अगर फ्रंट डेस्क पे कोई बंदा है तो वहां पे डेफिनेटली 75-85 तक जा सकते हैं। इसी तरह से कोई सेल्स का बंदा है जिसने आपके जो कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, वहां पे इट वैल्यू अलॉट। तो लिहाजा ये मेरे एक जाती कह लें कि इनपुट है कि डिफरेंट करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और केस टू केस। इसकी वेटेज, इसके मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट करते हैं, वेरी करते हैं। और बेसिकली जो एवेल्यूएशन फॉर्म्स होते हैं ना, अगर हम उनको गौर से स्टडी करें तो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो कोई 8 से 10 मेजर कंटेंट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वली मार्क्ड होते हैं। तो लिहाजा कम्युनिकेशन के साथ साथ जॉब रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो एजुकेशन रेलिवेंट वो है, आपकी इंटीग्रिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, स्पीकिंग पावर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बयान किए। और ये बहुत अच्छा है कि इतनी डिटेल में बयान करने से जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि किस तरह से हमने प्रिपेयर होना है, किस तरह से हमने अपने इंटरव्यू को लेके चलना है। तो अब मैं थोड़ा सा अपने जो मेरे जाती ख्याल के मुताबिक चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बेसिकली हायरिंग प्रोसेस का एक वाइटल पार्ट जो है ना इंटरव्यू है, और ये डिटरमिन करता है जो कैंडिडेट है उसकी सुटेबिलिटी को। अब उसके डिफरेंट जो है इंटरव्यू के वो टाइप्स हो सकती हैं कि हम इसको किस तरह से कंडक्ट करते हैं। लाइक एक फिजिकल अपीयरेंस है कि कैंडिडेट को बाकायदा तौर पे बुलाया जाता है, वो पीयर होता है और उसको फिर हम इंटरव्यू करते हैं। दूसरी चीज, जैसा कि अभी हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट, जूम और दूसरे इस तरह के स्काइप वगैरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं, उनके जरिए हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। टेलीफोनिकली इंटरव्यू होता है। फिर इसी तरह से आगे ये ऑनलाइन कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे लिए जाते हैं ताकि पर्सन की सुटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। इसी तरह से कुछ केस स्टडीज दिए जाते हैं ताकि शॉर्ट लिस्टिंग में आसानी हो। फिर आगे अगर हम थोड़ा सा चलें कि बेसिकली जो है ये टाइप्स ऑफ जो स्किल्स हम देखते हैं इंटरव्यू में, उसमें भी दो तरह की, एक तो कॉमन स्किल्स होती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, स्पीकिंग पावर आपकी कैसी है, थ्रो ऑफ वर्ड्स कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी पास्ट अचीवमेंट किस तरह से आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ होती है स्पेसिफिक स्किल्स। अच्छा, जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनमें आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, लाइक अगर आप एक इलेक्ट्रिकल का प्रोफेशनल बंदा हायर करना चाह रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, उसकी एजुकेशन इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से आपका जो मैच है, आपके कह लें कि कंटेंट्स ऑफ द जॉब्स हैं, जो जेडीज आपने डिजाइन किए हैं, जब आप एक जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली जेडीज मेंशन करते हैं कि हमें ये स्किल्स और ये क्वालिटीज चाहिए कैंडिडेट में, वो मैच करनी चाहिए। अगर वो नॉन टेक्निकल जॉब है तो डेफिनेटली उसमें जो जनरल आपके कह लें सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको इम्पोर्टेंस जाएगी। अगर टेक्निकल है तो आपकी टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, दैट विल बी हाईली रेटेड। अच्छा, आगे इसके बाद थोड़ा अगर हम आगे चलें तो जो आउटलाइंस होती है बेसिकली इंटरव्यू में, जो जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको आपने अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे पेश करना है। तो मैं उसमें
ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी वीकनेसेस को डिस्क्राइब करने या मेंशन करने में हेजिटेट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इंटरव्यू जो है, आपका इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर है, वो डेफिनेटली पिक कर लेगा कि ये फैक्ट्स हाइडिंग हो रही है यहाँ पे। तो आप एक फ्लो के साथ एक स्मूथ कह लें के मोड में जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को शो कर रहे होते हैं, उसी तरह से आप अपनी वीकनेसेस को भी शो करें। और वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये बहुत मेरे लिए भी एक लर्निंग चीज थी कि अपनी वीकनेसेस को आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके पेश करें। अच्छा, इसी तरह से ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कैंडिडेट को जो है ना वो उनका ख्याल करना चाहिए। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने काफी हद तक 18-20 साल में इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं और मैं इंटरव्यूज में अपीयर भी होता रहा हूँ, उसमें एक चीज तो है कि आपको ना फोकस रहना होगा, बी फोकस्ड और काम रहें, बिल्कुल आप पैनिक ना हो और किसी तरह की एग्जाइटी शो ना करें, अपनी बॉडी मूवमेंट को अननेसेसरी आगे पीछे इस तरह से आप ना लेके जाएं। और आपके जो एक्सप्रेशन हैं उनमें चेंज नहीं होनी चाहिए, नो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक बहुत मैंडेटरी एक क्वालिटी है जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी अपेयर होते हैं। और दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है मेंशन करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। जब क्वेश्चनिंग होती है तो डेफिनेटली कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, कुछ आपके वीक एरियाज होते हैं। तो कम्युनिकेशन के जो दो मेथड्स हैं, एक क्लोज एंड कम्युनिकेशन है, एक ओपन एंड कम्युनिकेशन है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वहां पे ओपन एंड कम्युनिकेशन आपको मेथड यूज करना चाहिए कि सवाल दर सवाल चलेगा, इंटरव्यू का जितना दौरानिया है वो चलता रहेगा और आप उसमें बेटर परफॉर्म करते रहेंगे। और जो जहाँ पे आप समझते हैं कि आपके पास सफिशिएंट मवाद नहीं है, वहां पे मैं समझता हूँ कि आपको क्लोज एंड कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि उससे जो जिमनी सवाल आते हैं वो उसे ना निकले। अच्छा, इससे आगे अगर मैं थोड़ा सा और चलूं तो उसमें फिर ये चीज आ जाती है कि डिफिकल्ट वर्ड जो है ना उनको अवॉइड करें यूज करने में, क्योंकि उनको जब आप अनाउंस करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इजी वे में, इजी गोइंग वे जो है ना उसमें आप अपना इंटरव्यू सारे का सारा लेके चलें, ये एक बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और जिस तरह से ये मेरे दोनों जो काबिल एहतराम पैनलिस्ट हैं इन्होंने फरमाया कि आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ताकि अगर आपसे कोई इस रिलेटेड सवाल हो तो आप उसको फौरी तौर पे आंसर कर सकें। और आखिर में मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आपको कम्युनिकेशन का जो मेथड इंटरव्यू का है उसके साथ मैच करना होगा। यू हैव टू स्टडी कि आपका इंटरव्यू जो है उसका कम्युनिकेशन का मेथड क्या है। आपको उसी मेथड में, उसी अंदाज में इस इंटरव्यू को, पूरे सेशन को लेके चलना होगा और ऐसा करने से आप इंटरव्यूअर को एंगेज कर पाएंगे। अच्छा, और एक और चीज जो मैं समझता हूँ कि बैड कमेंट्स जो है ना आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जहां से आपकी जो है वो अर्निंग होती रही है, आपने रिजक कमाया है, तो किसी दूसरी जगह पे आप स्विच करते हैं तो ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि जी आप क्यों जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली जो गलती होती है कि कुछ लूज और बैड कमेंट्स जो है ना प्रीवियस एम्प्लॉयर के हवाले से कह दिए जाते हैं, जो कि डैमेजिंग मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस है। हेलो, जी जी सर। आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी आ रही। ओके ओके। अच्छा, इसी तरह से ये तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हेल्पफुल होंगी। इसी तरह से कुछ कैवियट्स हैं कि थिंग्स नॉट टू डू, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि बीइंग टू फ्रेंडली जो है ना वो फॉरबिडन है। जो जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने सीखा है, जितना हमने इसको कंडक्ट किया है। और दूसरा ये है कि अगर क्वेश्चंस को आप केयरफुली नहीं सुनेंगे तो ये भी डैमेजिंग होगा आपके लिए। और आपको सेशन में एंगेज रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आपने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट किया इधर उधर तो आप एक तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, दूसरा उसको प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह से एक चीज जो है कि जब आप अपने आप को मेंशन करते वक्त अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करना है तो वी का लफ्ज यूज करें रेदर आई, क्योंकि जब आप वी का लफ्ज यूज करेंगे तो ये आपको एक टीम प्लेयर और टीम ओरिएंटेड आपकी एक पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप आई का लफ्ज यूज करेंगे तो ये होगा कि आप एक इंडिविजुअल अप्रोच के मालिक हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इनको बहुत माइन्यूटली और केयरफुली देखा जाता है और इनको वेट दिया जाता है। और स्लॉचिंग और ममलिंग ये दो ऐसी डैमेजिंग हैबिट्स या कह लें कि ट्रेड्स हैं कि इनको आपको इन एनी केस अवॉइड करना ही करना है। अगर आपको बेसिकली कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा तो स्किप कर दें इसको, या मुख्तसर जितना उसका कोई एक पार्ट आपको आता है आप उसको बयान कर दें, उसके बाद आप आगे चलें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं अब, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो चलते चलते जो मैं आपसे शेयर कर सकता था वो मैंने कुछ शेयर किए हैं आपसे। तो होपफुली के इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अब मैं इसको, अगर आप कहें तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ कुछ बुलेट्स की फॉर्म में ना, ताकि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंटरव्यू किस तरह से प्रोग्रेस करता है, इसका जो फ्लो किस तरह से होता है और किस तरह से आपने मोमेंटम गेन करना होता है। दूसरी चीज़ है कि आप जो प्रीवियस आपके कुछ इंटरव्यूज कहीं ना कहीं हुए होते हैं उनको आप सम अप करें, उनमें से आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप प्रॉपरली वहाँ पे उनको मीट नहीं कर पाए या जिनमें आपने प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया। उन एरियाज को आप ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कंपनी को मैंने कहा कि स्टडी करें ताकि आपके पास उसकी बेसिक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। और आपके जो आंसर्स हैं उनको आपको शेप आउट करना चाहिए बिफोर यू अपीयर इन द इंटरव्यू। और उससे क्या फायदा होगा कि आप अपना टाइम आए बाएं शाएं में या आप नर्वसनेस का शिकार नहीं होंगे। अगर आप उसको शेप आउट कर लेंगे और उसको कुछ रिहर्सल करके या उसको रिपीट कर लेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। या किसी आपके सीनियर के साथ, किसी कोलीग के साथ इसका जो ना वो थोड़ा एक सेशन लगा लेंगे तो उससे आपको नेक्स्ट डे या सब्सिक्वेंट जो आपने इंटरव्यू में जाना है उसमें आपको आसानी होगी। टाइम पे आप पहुंचे, और अगर टाइम पे पहुंच गए हैं तो वहां पे अगर आपको उन्होंने कोई थोड़ा बहुत होल्ड पे रखा है तो सब्र का मुजाहरा करें, बी पेशेंट। वो आप वहाँ पे अनइजीनेस शो ना करें कि जी बुला लिया है और कभी आप बाहर नहीं करें, कभी आप अंदर जा रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो हेल्पफुल नहीं होंगी आपके लिए। और अपना एक इम्प्रेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्लेजेंट छोड़ के आए, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ द जो इंटरव्यूअर बोर्ड है उसके लिए, बल्कि आल्सो जहाँ रिसेप्शन पे आपको बिठाया गया जो आपको टी बाय टी सर्व कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कल को जब आपने वहां पे जाके अपनी जॉब का आगाज करना है, वहां पे अपनी ज्वाइनिंग देनी है, तो इन्हीं लोगों से आपका वास्ता पड़ना है। तो जो जो इम्प्रेशन आप वहां पे छोड़ के आ रहे होंगे उसी का आपको फिर ज्वाइनिंग के वक्त सामना करना पड़ेगा। और वेन्यू को आप जो है ना वो पूरा उम्मीद छोड़ के आए। ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिविटी लेके ना आए, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, ये लेट द पैनल डिसाइड। ये आपको खुद को डिसाइड नहीं करना। आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ वेन्यू को छोड़ें और आगे बढ़ें। हेलो जी सर। जी जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही। ओके अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब अगर आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में अगर आप श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फॉर क्विक इंस्टेंट और जो स्विफ्ट रिस्पांस देने की बजाय आप टाइम गेन कर लें कि 24 आवर में आपको मैं इसके ऊपर अपना रिस्पांस रिप्लाई रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम बेसिकली देखते हैं, और जब हम खुद किसी जगह पे अपियर होते हैं तो इनका हम ख्याल भी रखते हैं। तो एक और मैं आपको जो क्लोज करने से पहले, क्योंकि आगे ये मेरा कलर का वाला एरिया शुरू होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ मेरी खत्म हो जाएगी, तो मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ कि आपको मैं एक मज़े की बात बता के ख़त्म करता हूँ कि सर शाहिद इरशाद साहब जो है ना, वे बैक 2000 इन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। मैं इंटरव्यू दे रहा था और ये इंटरव्यूअर थे, मैं इंटरव्यू था।
और 2018 में अदरवाइज हो गया कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, सरशाद साहब मेरे सामने बैठे हुए थे। तो हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा भी है और एक दूसरे को वैल्यूएट भी किया है। तो ये एक क्योंकि आपकी वो टीम का हिस्सा है, तो एक मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी, मैंने कहा आपसे ये शेयर कर लूं। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। इस सिलसिले में कोई अगर क्वेश्चन किसी की तरफ से है तो मैं जब तक ऑनलाइन हूं मैं उसको आंसर करने के लिए रेडी। जी सर, आपसे मैं क्वेश्चंस के जरिए काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने काफ़ी अच्छे सवाल भेजे हैं। तो सर, सबसे पहला एक बेसिक सवाल होता है इंट्रोडक्शन का, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तो पार्टिसिपेंट्स ये चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए, कितना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। इंट्रोडक्शन बेसिकली जो है ना, इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आपकी लाइफ जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही होती है ना, कि सबसे पहले आपकी जात है, फिर आपकी एजुकेशन है, फिर आपका एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी टिप है कि वेरी इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अपनी जात के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, और देन आपकी जो प्रोफेशनल एक्सीलेंसी है उसको आप वहां पे डिस्प्ले करें। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड के, व्हाई शुड वी हायर यू, इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। आप अपनी वैल्यू एडिशन जो है वो डिस्क्राइब करें। बेस्ट जो आपकी कंपैटिबिलिटी है, सिंक्रोनाइजेशन है, उसके सुटेबिलिटी है जॉब के साथ, आप उसको हाईलाइट करें कि मुझे इसलिए हायर करना चाहिए कि मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस वो रेलिवेंट है, और मैं अपने साथ ये वैल्यू एडिशंस लेके आऊंगा। ठीक है, व्हाई यू लेफ्ट द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक बड़ा सिंपल सा, ये एक ऐसा सवाल है कि ऑलमोस्ट हर बंदे को सामना करना पड़ता है। तो एक कह लें कि 90% इसका जवाब यही आता है कि जी फॉर बेटर, कह लें कि अपने कैरियर एडवांसमेंट, बेटर लर्निंग। इसमें मैं बेसिकली जो अपनी जात के लिए आंसर करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जी मेरा यहाँ पे एक टर्नओवर है, यहाँ पे एक सीलिंग है, तो मैं अब मैक्सिमम हिट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे अब जो ग्रोथ और लर्निंग है वो अब सीलिंग को टच कर गई है। तो मुझे मजीद लर्न करना है, मुझे और एक्सप्लोर करनी है चीजें, मैंने और आगे बढ़ना है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो मैं किसी भी ऐसी एनवायरनमेंट में जाना चाहूंगा जहां मेरे लिए लर्निंग और ग्रोथ के इक्वल जो है चांसेस हों। ठीक है सर, सम टाइम ऐसा होता है कि फाइनेंस की या सीएफओ की या अकाउंटेंट लेवल की कोई जॉब है, तो उसमें अकाउंट्स के क्वेश्चन की बजाय जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तो एक एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि अगर हमसे भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएं और हमें ना आते हों, तो इस सिचुएशन में बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। बेसिकली ये जो आपकी जॉब से हटके होते हैं ना क्वेश्चन, इनकी वेटेज भी उतनी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपका कोई प्रोफेशनल क्वेश्चन है, अगर वो 10 मार्क्स है, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो है उसका भी 10 मार्क्स होंगे। ये 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। आपको आता है बता दें, नहीं आता तो एक्सक्यूज कर लें। सही है सर। एक्सपेक्टेड सैलरी का क्वेश्चन जो है, इसका क्या आंसर करना चाहिए। देखिए, अगर तो आपको ऑलरेडी मालूमात हो कि इस सीट के ऊपर एक डिजाइन पैकेज क्या है, देन तो उससे मिलता जुलता आप डिमांड करें, ताकि आपको जस्ट बिकॉज ऑफ हायर डिमांड ड्रॉप ना किया जा सके। अगर आपको पता नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें कि जी ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी प्रोफेशनल एक्सीलेंसी है, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली उसको वैल्यू करेंगे और उसके हिसाब से मुझे आप ऑफर करेंगे, ताकि फौरी तौर पे कोई गलत डिसीजन होने से बच जाए। जब ऑफर आपको ऑफिशियली रिटर्न में आ जाए, उसको आप कंसीडर करें। मैच कर रही है ठीक है, नहीं कर रही तो यू हैव योर ओन चॉइसेस। जी ठीक है सर। अगर बारगेनिंग करनी हो तो कितने % तक बंदे को बारगेनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि उसका एक इम्प्रेशन भी सही रहे। जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो ये ना कहे कि इसने बताई इतनी थी लेकिन अब ये इतने पे आ गया है। तो इस सिलसिले में कितना बारगेनिंग का कुशन रखना चाहिए डिमांड में और ये एक्चुअल। ये ये तो ये तो देखें यास भाई कि आपकी जब आप डिमांड कर रहे हैं ना, तो ये चीज उस वक्त डिफाइन हो जाती है कि आप एक लॉजिकल डिमांड करें। जब आप लॉजिकल डिमांड करेंगे तो नेगोशिएशन का जो मार्जिन है ना, वो नैरो होगा, ब्रैकेट छोटी रहेगी। जी ठीक है। ठीक है सर, ऑनलाइन इंटरव्यूज जो हैं, जैसे अभी आजकल पेंडेमिक में चल रहा है सारा, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर या क्या टिप्स हैं जो देखने चाहिए। देखिए, ऑनलाइन जो इंटरव्यू है ना, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे इंटरप्शंस ना हो, आपके बैकग्राउंड नॉइसेस कम हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्मूथ और स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर सुन सकें, प्रॉपर रिप्लाई कर सकें। सेकंड चीज, आपका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल वो होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ना कि वो डस्ट जिस तरह से ये टाइडी और वो मैसअप चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप समराइज फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, जिनसे आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरव्यू हेल्प सीख कर सकते हैं, वो अपने आपके पास होनी चाहिए। एक राइटिंग के लिए पेन और पेन जो आपका पेपर है वो आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर कुछ जो इम्पोर्टेंट आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप बुलेट्स में लिख के अपने पास सामने रखें, ताकि जब आप बोल रहे हो, समटाइम ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू से पहले बहुत सारा मवाद आपके जहन में होता है। द मोमेंट आप सामने आते हैं या आप क्वेश्चंस की जो फायरिंग रेंज में आते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए ये ऑनलाइन जो आपका सिस्टम, इसमें ये एक एडवांटेज है कि आप अपने पास कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं जो आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरव्यू हेल्प आउट कर सकती हैं। जी सर, सही है। डियर पार्टिसिपेंट्स ने रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, मैं एक दफ़ा जस्ट पढ़ के आपको खुद ही बता देता हूं कि वीकनेसेस के हवाले से हमारे पैनलिस्ट ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपनी वीकनेसेस को पॉजिटिविटी यानी स्ट्रेंथ्स की सूरत में बताएं, और जो आप वाई वी शुड हायर यू में सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप वैल्यू एडिशन कुछ बताएं कि वैल्यू एडिशन आप क्या करेंगे जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। और सर, टिप्स फॉर सीवी, क्योंकि एक परसेप्शन है कि सीवी देखने के बाद ही आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो सीवी कैसी होनी चाहिए? सीवी देखे, मैंने जिस तरह से आपको इंट्रोडक्शन की बात की है, सीवी का भी सेम सीक्वेंस होता है और इतना वो सादा होना चाहिए कि, क्योंकि जब देखें आप कोई भी किसी जॉब को अनाउंस किया जाता है तो उसके रिस्पांस में नंबर ऑफ सीवीज रेज्यूमेस आते हैं। तो लिहाजा जो शॉर्टलिस्टिंग वाले लोग हैं, जो सीवी उनको इजी टू रीड होता है और अट्रैक्ट कर रहा होता है, अंडरस्टैंड इजीली हो रहा होता है, वो उनको ज्यादा अपील कर रहा होता है, उसको वो ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। और जो ज्यादा डेकोरेटेड होता है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूजर फ्रेंडली या रीडर फ्रेंडली नहीं होता, वो समटाइम ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी मिस हो जाता है। क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टिंग करने वाला बंदा है ना, जो वो देखता है कोई सीक्वेंस नहीं बढ़ रहा है इसका, उसका तसलसल नहीं, तो वो साइड पे रख देता है। उसको इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी आपको होती है, जितनी एप्लीकेंट को होती है। तो लिहाजा आपके जितने भी, एक तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि समरी ऊपर आपकी होनी चाहिए। समरी जो है उसमें आपका टोटल एक प्रोफाइल जो है वो कोई 8-10 लाइनों में आ जाए, ताकि उसको पढ़ने के बाद आपका एक इमेज क्रिएट हो जाए। जब आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा तो जो आपका इंटरव्यू है, जो जो आपका एचआर की टीम शॉर्टलिस्ट कर रही है, अगर वो इंटरेस्ट पैदा कर देगा, एंगेज कर लेगा, वो गो थ्रू होंगे डिटेल में और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सर, इंटरव्यू देने के बाद हमें फॉलो अप करना चाहिए कि हमने इंटरव्यू दिया था और अभी तक कुछ बताया नहीं है, या खामोशी इख्तियार की जाए अगर चंद दिन गुजरने के बाद भी कुछ ना बताया जाए? आपकी क्या सुजेशन है? मेरी सजेशन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपका वहां पे कोई एचआर में इंटरव्यू से पहले राब्ता रहा है, अगर इंटरव्यू से पहले एचआर की टीम आपसे एंगेज रही है टेलीफोनिकली या इस तरह से या थ्रू ईमेल, तो फिर आप इंटरव्यू के बाद अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए एक मरतबा टच कर सकते। ठीक अगर है। आपका इंटरव्यू से पहले उनसे राब्ता नहीं रहा है तो देन लेटर ऑन भी मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है सर, क्या सीवी में पिक्चर होनी चाहिए या नहीं? इट डिपेंड्स कि अगर देखें कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप समझते हैं कि मैंने, स्पेशली ये मामला जो है ना वो फीमेल कैंडिडेट्स के साथ ज्यादा इशू बनता है, तो इसका ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई वेटेज है या नहीं है, क्योंकि आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, दैट मैटर्स। ठीक है। सीवी पे डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं भी एक अब आपको छोटा सा टिप दे देता हूँ अपनी तरफ से कि जब भी आप एम्प्लॉयर को सीवी भेजें, पीडीएफ में भेजें, वर्ड में ना भेजें, क्योंकि वो जब डाउनलोड होती है तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है। प्लस मैंने अक्सर देखा है कि सीवीज आती हैं तो सीवीज में लिखा होता है, साथ ही ना आपने एक शॉर्टकट बना लेते हैं जब फाइल सेव करते हैं कि याद रहे कि मैंने इस कंपनी में कौन सी सीवी भेजी थी।
तो वो CV फॉर ICM में या CV फॉर सितारा इस तरह के वर्ड यूज ना करें, प्रेफरेबली आप अपने नाम से CV सेव करें। तो ये मेरी तरफ से आपको एक टिप था। मैं CV पे डॉक्टर अर्शिया हाशमी साहबा से राय लेना चाहूँगा कि CV के हवाले से जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दी है, CV गाइड के हवाले से भी कुछ अगर इनपुट कर सकें डॉक्टर अर्शिया साहबा। Yes, sure. There are a lot of tips, and we can have a full session on CV development as well, because it is a very technical thing to be done, and the CV is very internationally. We had different workshops on. You can say CV development, and there are a lot of tips to develop the CV as well. For instance, if you are the beginner in your career, so your first you can say the thing that should be mentioned in your CV. I will I will tell you a few tips, because CV itself needs a full session. But I would like to mention the generalized tips. So if you are the very beginner in your job, then you should at first mention your qualification, and then your experience, and then other things should come. But if you are an experienced one person, so in that situation your experience should come at top, and then later on you should show your qualification in your CV and the later things. And there is a thing that should must be you can say emphasized, as being an employee of any organization, I will suggest you that whenever you do your first job, your tenure on the first job should be at least 1 year. You should not leave your first job before 1 year, because it will not give a good gesture to your employer, the later employers, that they will say that this person is not consistent in his behavior, that he left his very first job at that much earlier time. So whatsoever the situation would be, you should sustain yourself at least 1 year, and the 2 year is the best period that you should must spend on your first job. And if this will be added in your experience on CV, it will give the best you can say expression for you. And secondly, I have seen in the interview in the CVs that there are so many irrelevant informations that are given in the CV that are not needed in the CV. For example, your religion, it is an irrelevant thing to be asked. If someone is asking, you can answer them. Your marital status, it is not a thing to be mentioned in CV. It is some personal thing. Similarly, if you talk about your, you can say date of birth, there is no need to mention your date of birth on your CV. They are concerned about your academic qualification and your experience. So why are you giving them the extra information? And there is another very big mistake which is done by the you can say the CV developers, is that in reference section they are mentioning the references which are not needed. For example, मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, आप म्यूट हैं मैम, आपका माइक म्यूट है। Now can you hear me now? यस यस। Yes. Okay. So there is another mistake that is I was mentioning in my talk, that usually the people develop the CV and they write in the reference section that will be available on demand. This is a very bad impression that is given by a CV developer when he writes this thing. You should must mention your references when you are writing your CV. So this is not the thing that will be written like that. It will be provided on demand. So you should be assured about your references. And there is another thing that mostly the young graduates do. They develop their email addresses, and that email addresses are that much casual, like King at all, Prince at all, and like that. And you can say Baba's Princess. This kind of you can say the you can say IDs are developed by younger ones, and sometimes I have seen the IDs dawn. So this is the you can say the attitude usually kept. But this is the
the, you can say, the your ID that will depict your attitude. So such sort of ID should not be written on your CV. You should write your CV with your name. You should prefer that kind of CV that should keep your name, and you should even avoid the numbers in the development of your email ID. So your email IDs should be with your name, and there should be at least 1 or 2 digits. That would be enough if you want to add, but there should not be any digits. There should not be the date of birth. There should not be some prince and king like thing in your CV. And the photo is very important, I will tell you. Sometimes we mostly in youngsters nowadays place their selfie photos on their professional profiles. So for that situation, you should not, you can say, put place your such sort of photo on your CV. You should place yourself, if I could have a session, I could have shown you some ways of photos that should must be placed on your CV. That should be your posture, and that should be bit tilted posture, but not very straight like a passport size photo. That would not also be the option, and that would not be an option that like you would be like a hero on your CV. But that should be as composed person with bit tilted posture and a plain background. So I think these are few tips that I want to add. मैम थैंक यू सो मच। वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ड्रॉप करने वाली बात है, वो तो मैं आपकी इस सजेशन को सबसे पहले मैं मानने वाला हूँ। मैं भी कई दफ़ा सोचता था कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रही थी, तो मैं आपके आर्गुमेंट की बेस पे अपनी सीवी में से वो उड़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। डॉक्टर उमर साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, तो क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है 1 पेजर सीवी वाला। तो एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसकी पहले 4 से 5 पेजेस की सीवी है, तो क्या उसे अपनी सीवी को 1 पेजर कर लेना चाहिए या वो 4-5 पेजेस पे ही रहने दे? जी शुक्रिया यार साहब। आई थिंक फॉर द फर्दर डिस्कशन नथिंग लेफ्ट फॉर मी, बिकॉज डॉक्टर अर्शिया और इरशाद साहब ने जो है वो बहुत कम्प्रिहेंसिवली जो है वो अपने ओपिनियंस को जो है वो डिलीवर किया, और मैं इनकी सारी बातों को जो है वो सेकंड करता हूँ। हैविंग सेड दैट, जो क्वेश्चन आपने किया है अभी, जो बात आप कर रहे हैं कि 1 पेजर सीवी, यस टू द सम एक्सटेंट, अगर आप ये चीज़ सिर्फ उस कंडीशन में एप्लीकेबल हो सकती है अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं। मेरी कुछ अर्सा के लिए फूड स्टफ एक कंपनी है न्यूजीलैंड की, इट्स अ वेरी बिग कंपनी जो कि पूरी न्यूजीलैंड को फूड्स जो है वो फूड की सप्लाई चेन मैनेज करती है, वो सिर्फ एक कंपनी। तो वहाँ पे वहाँ की एचआर में जो मैंने ट्रेंड्स देखे थे सीवीज के, तो आपके जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, कोई अगर बीएस सप्लाई चेन है या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है या बीएस इकोनॉमिक्स है, तो उन सबका सीवी जो है वो 1 पेजर आ रहा था, ओनली 1 पेजर। लेकिन अगर आप उन लोगों की बात करें जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो लोग अप्लाई करते थे अपनी सीवीज को लेके, उन पोजीशंस को लेके, तो यस उनका जो सीवी जो है वो 2 to 3 पेजेस पे एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जो है वो आउटकम्स डिफाइन करने होते थे कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में जो उन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लीड किया उनके आउटकम्स उनके क्या निकले हैं। उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को उसमें डिस्क्राइब करना होता था और अपने चैलेंजेस को उन्होंने उसमें डिस्क्राइब करना होता था, ताकि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट चैलेंजेस दैट दे फेस उनको वो हायर कर सकें। जी सर। सर सीवी के अंदर इन्फोग्राफिक्स या आइकॉन वगैरह यूज़ करने चाहिए एड्रेसेस के या हॉबीज़ के, इस तरह की कुछ चीज़ों के? In international context, no, I didn't see anything like that in the CV. हाँ, अगर ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो यस यू शुड मेंशन योर हॉबीज एंड अदर काइंड ऑफ स्टफ, बट इन द सीवी मींस यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, सो यू शुड बी मोर फोकस अबाउट दैट वन। जी, थैंक यू सर। Now I request Mr. Shahid Irshad, FCMA, Chairman CPD Committee of Faisalabad Branch Council for concluding remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, sir, thank you very much for giving me the chance to conclude this session. The session has gone so well and so thoroughly composed कि मेरा ख्याल है कि कंक्लूजन के लिए ये सारे हमारे लर्नर स्पीकर्स ने एंड ऑफ देयर सेशन उन्होंने बड़ा खूबसूरती से इसको कंक्लूड किया है। Nonetheless,
डॉक्टर अर्शिया ने, अब डॉक्टर उमर फारूक साहब ने और अब शाह साहब ने बहुत खूबसूरती से इन सारी चीज़ों को कवर किया है। क्योंकि ये जो सेशन था इंटरव्यू स्किल्स के लिए, ये बड़ा लॉन्ग एक हमारा वेटेड सेशन था और हमारे यंग मेंबर्स और हमारे जितने भी मैं ये समझता हूँ कि रादर एक्सपीरियंस मेंबर्स भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी इन अच्छे इंटरव्यू स्किल्स में कुछ बीइंग इंटरव्यूअर हमें कुछ और चांसेस मिलते हैं और बीइंग इंटरव्यू हम इतने इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं और जिस तरह से हमारे लर्नर पैनल ने बहुत इसको फुल डिटेल में जाके चीज़ों को डिस्कस किया, दैट इज़ हाईली अप्रिशिएट। और सीवी पे ख़ास तौर पे जिस तरह से मैडम अर्शिया साहिबा ने फरमाया कि इट्स सो फुल फ्लैश टॉपिक कि हम एक और फुल फ्लैश सेशन सीवी मेकिंग पे भी हम बना सकते हैं and we will shortly inshallah plan for this session also, and we will request this learner panel to spare their time for that session as well, so that our participants may take benefit from their expertise. तो सीवी में मैं ख़ास तौर पे आपको मज़े की बात बताऊँ, चूँकि अब एक करियर की स्टेज पे हम हैं कि खुद इंटरव्यू लेते हैं। सीवीज़ में जब कोई 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस हमें जहाँ पे कोई भी मेंबर चाहिए हुए होता है, तो समटाइम सीवी जिस तरह से आपने कहा है कि वन पेजर होना चाहिए या कि मल्टीपल पेजर, वो मल्टीपल पेजर होते हैं और मल्टीपल पेजर में इतने मज़े की चीज़ ये हम नोटिस करते हैं कि इस तरह से लगता है किसी अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स की अगर किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ या इवन मैनेजेरियल रैंक के लिए भी मैं कर रहा हूँ, तो वो इतना लंबा-चौड़ा वो पकड़ के अपनी प्रीवियस जेडीज़ और प्रीवियस एक्टिविटीज़ लिख देते हैं कि ये लगता है कि ये मैनेजर फाइनेंस भी यही थे, मैनेजर अकाउंट्स भी यही हैं, मैनेजर टैक्सेशन भी यही हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी यही हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी यही देखते हैं, स्ट्रेटेजिक डिजाइन को भी यही देखते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को भी यही देखते हैं। So when we start asking questions from them, so then they feel blank and then they become speechless. Now, this issue is a highly objectionable issue. That whenever interviewer feels that you have given so such the information which you actually have not been doing in your career, that it makes a very bad impression. So शायद कॉपी पेस्ट होता है, चूंकि सीवी मेकिंग में कॉपी पेस्टिंग बहुत जो है वो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अगर यार साहब का सीवी बहुत अच्छा बना हुआ था और मुझे कहीं से मेरे दोस्त ने दिया, तो मैं उसे बतौर टेम्पलेट यूज़ करता। अब आपका अब सिंध साहब का और जो हमारे जितने जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ्स हैं एंड जो उनकी अपनी जेडीज़ थी वो उनकी सेपरेट रही हुई हैं। सो ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू जा रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें चूँकि नॉर्मली हम यही देखते हैं कि अगर हमने मिडल मैनेजर्स के लिए किसी को इंटरव्यू करना है कि वो व्हाट ही हैड बीन डूइंग इन द पास्ट या फॉर व्हाट ही हैज बीन डूइंग इन हिज लास्ट जॉब, एंड व्हेन वी सी कि जी जो इन्होंने मेंशन किया है इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, लेकिन पॉइंट्स वहीं से लेने शुरू किए, सीवी में जो आपने लिखे हुए थे उन्हीं को टेस्ट करना शुरू किया और किसी एक पॉइंट पे आके पता चला कि द कैंडिडेट हैज मेड ब्लफ, तो ये होल ऑफ द इंप्रेशन आपका जो है लूज कर देता है। सो ये मेरी मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है, मेरे जो यंग फेलोज हैं, उनको एडवाइस भी है कि सीवी आप अपना लें और कभी कॉपी पेस्ट ना करें। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप करते रहे हैं, सिर्फ वही मेंशन करें। इंटरव्यूअर को आप इस तरह से इम्प्रेस नहीं कर सकते कि मैं 10, 15, 20 चीज़ें लिखूँ कि जी मैं यहाँ ये कर रहा था, ये मैं कर रहा था और ये लगे कि जैसे सब कुछ आप ही कर नंबर 1। नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ कही इरशाद साहब ने कि आपने इम्प्रेशन जो है वो टीम प्लेयर का देना है। टीम टीम प्लेयर के हवाले से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर, ओनली देन यू कैन बिकम अ गुड टीम कैप्टन। अगर टीम फेलो होगा, नेवर यूज आई बट always try to use the phrase be, and whenever interview asks you to share your successes in your past career, उसको आप कभी भी अकेले क्रेडिट आप उसका नहीं ले सकते। एंड एक्चुअल होता भी ऐसे ही है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो जो आपका जूनियर मोस्ट मेंबर भी है, ही हैज हिज ओन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर टास्क।
ये सारी चीज़ें जो हैं, और जब हम कर रहे होते हैं, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव्स को देख रहे होते हैं, तो टीम प्लेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर, ओनली देन यू कैन बिकम अ गुड टीम कैप्टन। तो ये चीज़ें बड़ी-बड़ी जो है नोटिस होनी चाहिए। और फॉर्मल ड्रेस कोड का मैडम अर्शिया साहिबा ने हमें बहुत खूबसूरत ड्रेस कोड के, अच्छा अब ये चीज़ें जो हैं, ये आप बिलीव करें कि ये मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आज जो हैं ख़ास तौर पे ड्रेस कोड के हवाले से, तो मुझे मैडम अर्शिया साहिबा की मुझे प्रेज़ेंटेशन से और जो उन्होंने बड़ा डीपली जाके इसको डिस्कस किया, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस कोड जो है, वो हम उतने अच्छे जो है ड्रेस कोड के फॉलो नहीं होते, और ख़ास तौर पे अकाउंटेंट्स जो हैं, जो जो हमारा जो कम्युनिटी है, दे नॉर्मली फील कि जी, जो जैसे या साहब आपने भी फरमाया कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा टेक्निकल स्किल्स को जो है वही टच जो है टेस्ट होगा और उसी कंट्रीब्यूट टच करेगा, बट प्रॉपर ड्रेस कोड इज एन एडेड फीचर इन योर पर्सनालिटी एंड इन योर इंटरव्यू। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। मैं कोशिश की मैं कि इसको समराइज करूँ, लेकिन ये इतना एक जो है वो जो हमारा वसी टॉपिक है, और इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम हमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम चाहे हमने जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन इंटरव्यू देना और हाउ टू मेक योर सेल्फ मोर स्टेबल वेरी सेलेबल पर्सन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि सर्विसेज को, अगर मैं अपनी सर्विसेज को किसी को हायरिंग के लिए मैं आया हूँ, और इम्पोर्टेंट सिम साहब ने फरमाई कि वे बैक इन ईयर 2000 आई इंटरव्यूड हिम, एंड इन ईयर 2018 ही इंटरव्यूड मी। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मैं बीइंग अकाउंटेंट, मैंने एचआर प्रोफेशनल को आई गॉट द चांस एंड आई गॉट द ऑनर इवन कि मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल को, टॉप प्रोफेशनल को इंटरव्यू किया, एंड देन 2018 में चूँकि एक मैं आपको अबराज की बात बताऊँ कि सारा ग्रुप में मेरी हायरिंग जो थी, हायरिंग पैनल में जो थे इंटरव्यू पैनल में शायद सिंधु साहब भी। सो तो ये तो सारी प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे, क्योंकि आज मैं अपने मेंबर्स की, उनकी नॉलेज के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि चूँकि अभी सेशन जो हैं वो फिज़िकल सेशन शुरू नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ वी वर प्लानिंग सीपीटी कमेटी विद द सजेशन ऑफ हमारे अर्दल अज़ीज़ आप चेयरमैन ब्रांच काउंसिल अब्दुल शकूर साहब, कि हम लाइव हम जब सेशन में जाएँगे तो हम कुछ डमी इंटरव्यूज़ भी प्लान करेंगे। हम कुछ प्लान करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनका ये हमारे लर्नर जो हमारे जो जो पैनल है, वो उनको किसी एक ख़ास पोज़ीशन के लिए इंटरव्यू करें, एंड देन लेटर ऑन वो उनके साथ उनकी स्ट्रेंथ्स को और उनकी मैं वीकनेसेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एरिया टू पॉन्डर जो है उनको उनके साथ फिर वो उस इंटरव्यू सेशंस के बाद उनके साथ शेयर करें। और मुझे हमेशा अपने इंस्टीट्यूट पे बड़ा फ़ख्र रहा है। हमारा ICMAP हैज़ बीन गिविंग आवर नेशन अ ग्रेट लीडर्स एंड ग्रेट कम्युनिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। लेकिन थोड़ा-सा जो एरिया टू वर्क ऑन है, जिस चीज़ को हम बैठ के मिस करते हैं, कि शायद हमारे मेंबर्स और इन मेंबर्स में मैं खुद भी शामिल हूँ, सबसे पहले मैं खुद शामिल हूँ, कि हम इंटरव्यू में उतना इम्प्रेसिवली शायद बिहेव नहीं कर पाते। सो वो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एज, और ICMAP अदर जितने भी हमारे लोकल और हमारी काउंटी बॉडीज़ हैं, उनके मेंबर्स भी आते हैं। और ख़ास तौर पे अकाउंटेंट्स, मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि अकाउंटेंट्स हम शायद ये समझते हैं कि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द नंबर्स एंड वी आर ओनली कंसर्न्ड विद प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। Yes, this is right. We are concerned with balance sheet and we are concerned with profit and loss. But if you want to move on the top of the position in the organization, then your personality and your communication skills, those have to be equally mastered and worked up. सो ये सारी चीज़ें हैं जनाब। और एक और मैं अर्ज़ करूँ कि अगला हम इंशाल्लाह ताला जो जब हम प्लान करेंगे अगले सेशंस में, तो जैसे मैडम अर्शिया साहिबा ने फरमाया और इरशाद सुन साहब ने फरमाया कि सीवी मेकिंग एंड सीवी राइटिंग इटसेल्फ एक फुल फ्लेज टॉपिक है एंड इट डिमांड्स मिनिमम 2 to 3 सेशंस। ये कोई 1-2 घंटे में भी पूरी करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे।
और हम अपने इस लर्नर जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम मतलब हम जो है दोबारा रिक्वेस्ट में करूँगा कि वो हमें फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए ख़ासतौर पे सीवी राइटिंग के लिए अपना टाइम ज़रूर स्पेयर करें। एंड इन द एंड आई वुड लाइक कि मैं इन पैनलिस्ट को दोबारा से मैं इनका टाइम स्पेयर करने के हवाले से मैं ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सर। ईमेल एड्रेसेस के हवाले से एक पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया था, वो मैं आप पार्टिसिपेंट्स को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जब आप ईमेल एड्रेस अपना बनाएं तो उसके अंदर एक वर्ड को बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें। जैसे मैंने एक ईमेल एड्रेस देखा, बुखारी वर्ड था, तो उसमें उसने लिखा BUKHIII, वो आई इतने थे कि मैं कंफ्यूज हो गया कि ये 4 हैं या 5 हैं। तो अगर आपकी सीवी पे इतने ज़्यादा आई लिखे होंगे तो आपकी सीवी या ईमेल एड्रेस जब आपको टाइप करेगा वो, जिसने आपको कुछ इनविटेशन या कुछ सेंड करना है, तो उसके लिए ये कंफ्यूजिंग है। तो मेरी ये सजेशंस है कि इस तरह की रेपिटेशन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हो, 4-5 रेपिटेशन जो हैं इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मली इसको एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन ब्रांच फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल मिस्टर अब्दुल शकूर FCMA फॉर अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू यार मुस्तफा। सबसे पहले वंडरफुल वेबिनार टुडे। मैं मैडम अर्शिया का, डॉक्टर उमर साहब का और सिंधु साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें जो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट थे वो डिस्कस किए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई वुड लाइक टू टेक 1 or 2 minutes। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स टू तनवीर साजिद जिन्होंने स्पेशल कागज से ये आज भी एक्टिविटी हुई। हमारे चेयरमैन CPD कमेटी शायद साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और काफ़ी लर्न है, इनका भी माशाल्लाह बहुत रिच एक्सपीरियंस है जो आज का सेशन था। तो हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। मैं 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जैसे माशाल्लाह शायद भाई ने, बाकी हमारे पैनलिस्ट ने किए हैं। एक जब CV के अंदर लिखा जाता है, मैं मुझे भी इत्तेफाक हुआ है कि उसी इंटरव्यू करने का बैठते हैं, तो ये जो शॉर्ट एंड स्पेन होता है ना कि जब इंटरव्यू का देने आता है उसका 6-6 महीने 5-5 महीने होता है, तो ये बड़ा बैड इंप्रेशन होता है। जो सिंधु साहब ने कहा था भी कि जी वो पूछते हैं कि व्हाई यू लेफ्ट द प्रीवियस जॉब। अच्छा, वो तो गुंजाइश ही नहीं बचती। जब आप 3-3 महीने होते हैं तो नॉर्मली लोग पुराने को कहते हैं कि वो अच्छा नहीं था, तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं आता। तो 2 वजह हो सकती है, या खुद अच्छा नहीं था या पुराना अच्छा नहीं था, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब स्पैन आपका देखें 40, मैं मोस्टली कहता हूँ कि 40 ईयर्स तक आपने 3-4 टर्नओवर करने हैं, 4 जॉब करने कर लें। जब आपके CV के ऊपर टर्नओवर ज्यादा होता है 6-6 महीने का, 8-8 महीने का, तो वो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। एक दूसरा, जब जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं, ये इनिशियल लोगों के लिए भी है, कुछ भी हर दफा एक बड़ा फील होता है कि उसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आती। मैं टेस्ट करता हूँ किसी की राइटिंग से, हालांकि हमने कोई हैंड रिटन काम तो कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर पे करना था, हैंड रिटन नहीं करना था। जस्ट गिविंग one paper, please write an application. Mostly I surprised, mostly people don't know how to write an application for job. अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? 2 फायदे होते हैं। एक तो उसकी राइटिंग से पता, उसकी पर्सनल स्किल पता लग जाती है कि एफिशिएंसी क्या है, वो कितनी देर में लिख रहा है। जस्ट वो 2-3 लाइनें लिखता है, मुझे पता लग जाता है ये क्या है। मतलब ये दिस इज माय परसेप्शन। वो एप्लीकेशन पूरी लिखे ना लिखे, वो 2-3 लाइनों से आपको पता चल जाता है कि यार इसने जो CV भी ड्राफ्ट किया है, जैसे शायद मैंने कहा है कि या कहते थे वो टेम्पलेट उठा के कर लिया है, तो उस एक तो ये था। और ये 2-4 मेरी तरफ टिप्स से, बाकी तो गुंजाइश ही नहीं बची। माशाल्लाह हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी चीजें की हैं और फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल की तरफ से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत अच्छा वेबिनार था। प्रैक्टिकली इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमें ये NCO की तरफ से होता है कि इवेंट्स कर लें, तो ये CV के ऊपर चाहे वर्कशॉप हो, CV बिल्डर के ऊपर फुल डे वर्कशॉप हो जिसपे CV डिजाइन की जाए प्रैक्टिकली, और ये इसके हो। तो वंस अगेन जी थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली स्टाफ का, हमारे फैसलाबाद स्टाफ का, हमारे कराची ICMP का जो हेड ऑफिस का, जो तमाम लोग थे, उन सबका शुक्रिया। एक और इवेंट जी अभी सर्कुलर हो जाएगा आपको, हम एक CPD मैं उनकी इजाजत से, शायद साहब की इजाजत से देना चाह रहा हूँ कि एक टेक्सटाइल के प्रोडक्ट के ऊपर माशाल्लाह एक हम 22 को करने जा रहे हैं वेबिनार। तो क्योंकि सेमिनार फिजिकली तो हो नहीं पा रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी एक्टिविटीज हैं वेबिनार पर हो जाए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much, dear all participants, panelists, the branch team. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।